हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऐसे जी के क्रेजिंग के ऊपर हमने शायद कल खत्म किया था। नाउ व्हाट इज क्रेजिंग? क्रेजिंग मीन appearance of lines, cracks, and these are the series of surface cracks, and cracks always propagates and weakens the bond between any surfaces or in the and when they are at surface they can penetrate, and crack propagation is can be elicited due to which failure or होगा या और क्या होगा, fracture of that material is obvious. Now there are three mechanisms for crazing. Number one, some patient has a habit of frequently removing their dentures and then again put it into their mouth. So due to that there is a continuous drying cycle is provided to the denture, due to which the water absorption followed by drying develop tensile stresses at the surface which ultimately causes crazing. So to prevent this, patients instructed to not to do this, and if they have to remove their denture they must keep it in water or moist. Their denture should be moist. Now the other one main problem of crazing is due to the use of porcelain teeth. We will discuss later on. Porcelain has a mismatch. अच्छा जी, porcelain teeth has a mismatch with the acrylic denture base, and mismatch is mainly due to the difference in the coefficient of thermal expansion between porcelain and acrylic denture base or acrylic resins, and this occurs at a ratio of about 1:10. In your book you have a table in which this mismatch is described. You can see here. Now crazing also can arise during denture repair when we are using monomers, methyl methacrylate monomers, for repairing the broken fragments or broken pieces of a denture. So cross-linking agent is not there. So we have to add or use a material with cross-linking agent for reducing the degree of crazing by binding polymer chains together, because we are going to repair usually the material with the heat cured material with a self cured material usually. Now सारे सो रहे हैं?
नो सर। अच्छा, मैंने कहा शायद सो रहे हैं। मोशन बाचा तो आज बीमार हो गया बेचारा। यस सर। सर यस सर, उसको बददुआ लगी है। किस चीज की? ये मजर की। हैं? किसकी? मजर की बददुआ लगी। अच्छा, मजर की कल आपने क्वेश्चन पूछा था, आज चुप है पूरा। कौन? चले जी, वियर। हॉस्टल सर। अच्छा, नहीं मोशन तो आज बीमार है, आज छुट्टी पे है वो। उसने मुझे कहा जी मुझे छुट्टी दे दे। बहुत अच्छा जी। यस। अच्छा, वियर। तो वियर mean already described in that in this material you can study almost all of the properties of a dental material. So wear is another important property of a dental material. Wicker hardness number, VHN, that of acrylic polymers shows that these are soft materials when especially they compared with alloys. alloy के साथ तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना, प्लास्टिक का और alloy का। तो उस हिसाब से ये बहुत ही सॉफ्ट है। अदरवाइज तो अगर आप किसी के सर पे मारे डेंचर तो उसका सर फट सकता है। तो वियर जो है इसका वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट ही मतलब हमें बताएगा एज कंपेयर टू मेटल। सो ड्यू टू लो वियर रेजिस्टेंस, एब्रेसिव फूड स्टफ एंड एब्रेसिव डेंटिफ्राइज क्लिनिक। डेंटिफ्राइज क्या होता है? जो हमारे दांतों वगैरह को या किसी चीज को साफ करने के लिए जो हम उसके अंदर जो सिलिका या कोई भी चीज हम डालते हैं जिसके साथ उसकी थोड़ा सा वो उसको रगड़ के साफ कर दे। जैसे हम बर्तन धोते हैं तो अमूमन वो क्या उसको यूज करते हैं, सैंड यूज करते हैं जो ज्यादा गंदे होते हैं बर्तन। तो उस वो एब्रेसिव होता है, तो वो क्या होता है, वो उसमें से जो उसके बर्तन के साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि हम आम रूटीन के सोप वगैरह से या डिश वॉशिंग लिक्विड वगैरह से नहीं रिमूव कर सकते, तो वो उसको वील ऑफ करा देता है उसके एब्रेसिव एक्शन की वजह से। क्लियर है जी? सारे सोए हुए लगता है। यस सर। अच्छा, यहाँ पे बारिश हुई है चलो ये कहाँ पे? सर, यहाँ पे। यहाँ क्या है? जहाँ का जगह का तो नाम बताओ ना। पिशावर पिशावर है पिशावर में? तो मैं को उधर कराची में बैठा हूँ। अच्छा ये पिशावर में रहना। अच्छा जी, नेक्स्ट जी। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिसएडवांटेज जो है वो हमारे एक्रिलिक रेजन्स का क्या होगा, उसका लो डेंचर लो वियर रेजिस्टेंस होगी। सो टू प्रिवेंट दिस, डेंटिफ्राइसेस कैन बी ग्रेडेड इन टर्म ऑफ एब्रेसिविटी, कि वो कितने ज्यादा एब्रेसिव हैं, और उनका पार्टिकल साइज और एब्रेसिव वगैरह जो उसके अंदर यूज किया गया उसको देख के। एब्रेसिव्स हम देखेंगे, एक चैप्टर है ये भी, बाजू का इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता होता है एब्रेसिव्स का। नाउ लो एब्रेसिविटी हमारा जो है ना, हमें यूज करना चाहिए डेंटिफ्राइज। सो डेंटिफ्राइज विद लो एब्रेसिविटी इज रिकमेंडेड फॉर क्लीनिंग डेंचर। लेकिन ये भी होना चाहिए कि सम एब्रेसिव पावर होनी चाहिए उसके अंदर। ये नहीं कि बिल्कुल ही फारग ही हो, तो कुछ ना कुछ एब्रेसिव पावर होनी चाहिए कि उसको साफ तो कर सके। नाउ केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली एक्रेलिक रेजन्स एब्जॉर्ब वाटर, हमने कहा था, और इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ अबाउट 2% एब्जॉर्प्शन इज रीच्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज और वीक्स, and it depends on the thickness of the denture. Now already described, loss or gain of water in the surface layer occur rapidly, due to which surface crazing occurs. Now absorption of water also causes a dimensional change, but this is considered as insignificant. इसका कोई खास वो नहीं है, लेकिन मतलब एब्जॉर्प्शन तो है, वो करता तो है ना। ठीक है जी, 2% मामूली तो नहीं, 2% कुछ ना कुछ तो होती है। तो इसकी इल फिटिंग डेंचर्स के ऊपर कभी हमने इसको वो नहीं किया, क्योंकि 2% इसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास वो रह जाता है मार्जिन।
नाउ कैंडिडल इन्फेक्शन, कैंडिडा, अमूमन आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा, वो डेंचर जब उतारते हैं उनके मुंह के अंदर व्हाइट व्हाइट लाइंस पड़ी होती हैं, वो मुंह पका हुआ होता है, सुर्ख जिसको किया होता है, तो ये कैंडिडा इन्फेक्शन होती है। तो कैंडिडल इन्फेक्शंस आर एसोसिएटेड विद वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली। नाउ द क्लियर एक्शन इज नॉट, कौन है सर? जी जी आइशाली कौन है सर? सीधे, आइशाली हाँ क्या हुआ है? सर आयशा अली कोई पार्टिसिपेंट है, वो आई है, तो ये कौन है? हमारे क्लास में से नहीं है। अच्छा चलो देख लेते हैं, जो आई है देखते हैं। जी सर रिमूव कर दे इसको। रिमूव कर दें? यस सर, सर पूछे भी ना। जी आयशा अली बात कर सकती हैं आप, क्या मसला है आपका? चलें जी, गई। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से एक और मसला भी है कि जिसको हम एक मरतबा रिमूव कर दें। हाँ ये देखो, एनोटेट करना से शुरू कर दिया था। यस सर। इसलिए सर हमने क्या किया, जिसको हम रिमूव कर दें मेरे ख्याल से वो दोबारा नहीं आता, कि नहीं आ जाता है? नहीं सर सर, आ वो जाता दोबारा है। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। एक मरतबा जब रिमूव हो जाता है फिर वो दोबारा जब जी? ब्लॉक कर दे फिर नहीं आ, जब ब्लॉक कर दे फिर नहीं आ सकता। ब्लॉक नहीं, वैसे सिर्फ आ रिमूव करने से ही होता है। ब्लॉक वाला तो मेरा ऑप्शन ही नहीं है अभी तक हमारे पास। ये हम वो सर जी। वो रिमूव का सर, वो पिछली बार आपने वो एक दूसरे लड़के को रिमूव किया था सर, वो गलती से मैं हो गया था, मैं दोबारा नहीं ज्वाइन कर सकता था। अच्छा, हालांकि मैंने तो उसी को किया था। यस सर, चलो पता नहीं क्यों मेरा चला गया था उसमें। चलो अब तो वो गई ना जी। अच्छा जी, तो कैंडिडल इन्फेक्शन के ऊपर बात करते हैं। ये कैंडिडा एल्बिकन्स इसकी टाइप होती है, जिसकी वजह से होता है व्हेन एवर वाटर एब्जॉर्प्शन अकर, वाटर जब उसके अंदर जाएगा तो सिर्फ अकेला तो नहीं जाएगा ना, वो साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी लेके जाएगा। तो कैंडिडा जो है वो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा होता है कहते हैं। तो इसके लिए फिर हम करते क्या है कि उसको हम क्लींजिंग उसकी ज्यादा करते हैं, कि जितना वो साफ होगा हमारा डेंचर तो वो ज्यादा बेहतर है। ये अमूमन होता ही है कि ये उसकी सरफेस के ऊपर ही कैंडिडा अमूमन पड़ा होता है, अंदर का कोई खास उसमें हमने देखा नहीं है, लेकिन अंदर जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो अभी तक वो नहीं है कि कैंडिडा इसके अंदर होगी या नहीं होगी। अच्छा जी, नाउ ब्लीचिंग। ब्लीचिंग एक और चीज है जी, कुछ लोग ब्लीचिंग करते हैं, हालांकि ब्लीचिंग इसके अंदर कोई जरूरत नहीं होती है। आपके जो क्या है डेंचर को, ब्लीचिंग तो हम ओरिजिनल टीथ की करते हैं ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हाउस होल्ड ब्लीच या अल्कलाइन परऑक्साइड्स को लेके तो उसको जरा सा ब्लीचिंग भी करने की कोशिश करते हैं कि जी सफेद नजर आए और ये और वो। उसमें होता क्या है, अमूमन उसके अंदर वैसे तो कोई खास वो नहीं है, लेकिन उसमें वो ब्लीच आउट उसकी अपनी जो कलर होता है ना, जो पिंक होता है, वो हो जाता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी that the colored acrylic should be bleached or should give away or should lose its color. Unpigmented bases are also prone to this bleaching process. और इसमें अमूमन होता क्या है, हम पानी भी ये लोग जो है ना गर्म यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये निकल जाता है इसके अंदर से, क्योंकि पिगमेंट होते हैं तो पिगमेंट्स जो होते हैं वो अमूमन लीच आउट हो जाते हैं। ठीक है जी। नाउ माइक्रोस्कोपी, फिर कौन आ गया है आज, लोग भी कम है हमारे पास जी। अच्छा ये हमारे क्लास के सर। ठीक है। माइक्रोस्कोपी जो होती है जी, ये हमें क्या बताती है कि व्हाइटनिंग इज ऑलमोस्ट सर्टेनली ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द मैट्रिक्स फेस। और ये मिसमैच क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, पॉलीमर बीड्स में और मैट्रिक्स पॉलीमर में, इन दोनों के अंदर जब मिसमैच होता है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, व्हाइटनिंग सी आ जाती है। और व्हाइटनिंग कैसी होती है, वो ऐसी किस्म की होती है। ये डेंचर नहीं है, इस डेंचर को काटा हुआ है अगर आप देखें तो काट के दिखाया उन्होंने कि ये सरफेस के इधर बाहर से अंदर की तरफ अगर आप आए ना, तो यहाँ पे ब्लीचिंग ज्यादा हो रही है और अंदर वाला जो है वो पिंक कलर उसने अभी तक अपने पास रखा हुआ है।
मतलब उसके अंदर ही है। और इसमें अगर आप ये छोटी छोटी वेन्स देखें तो वो वेन्स का कलर भी, अगर आप यहाँ पे व्हाइट में भी देखें तो वेन्स जो हमने वेन उसमें डाली होती हैं, वेन्स वो भी वहां पे स्ट्रक्चर, वेन स्ट्रक्चर और टू प्रोड्यूस वेन स्ट्रक्चर फॉर एस्थेटिक। तो ये जो है, ये वेन्स जो है इनके ऊपर जो है वो ज्यादा होता है, नायलॉन होता है, तो यहाँ पे कलर जो है वो स्टेबिलिटी हमें मिलती है। रेजिडुअल मोनोमर, इसके ऊपर अच्छी खासी हम बात कर चुके हैं कि एक्रेलिक जितने भी हैं, खास तौर पे मेथाइल मेथैक्रिलेट मोनोमर जो हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे? इनका मोनोमर रेजिडुअल जो होता है ये बेस के अंदर करते हैं। और इसके अंदर होगा क्या, अगर ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे पास हों तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी दूसरे अल्टरनेटिव मटेरियल पर जाना पड़ता है। तो अगर तो if our patients are not allergic, they may suffer irritation if very high level of monomers exists, जो मैंने पहले भी बात की थी। तो अंडर क्योर डेंचर बेस में अमूमन हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि वहां पर रेजिडुअल मोनोमर हमारे पास बहुत ज्यादा रह जाता है। आईएसओ स्टैंडर्ड जो है इसने बड़ी एक फ्रैंक किस्म की और बड़ी अच्छी खासी वो दी हुई है, इसको क्या कहते हैं, लिमिट्स 2.2% फॉर टाइप 1, 3, 4 एंड 5 मटेरियल एंड 4.5% फॉर टाइप 2 मटेरियल। ये वो कहते हैं जी कि ये बड़ी जेनरस किस्म की वो जिसको कहते हैं ना, उन्होंने दी है, छूट दी है एक किस्म की कि जी आप इन मटेरियल में इतने % अगर आपके पास रेजिडुअल मोनोमर रहता है तो खैर है, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा जी, नाउ सॉल्युबिलिटी जो है हमेशा से प्रॉब्लम रही है, ये इट इज अगेन an important property of the material. So for this, to prevent the solubility, a request to the manufacturer is to recommend a curing cycle, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जो रह जाती है ये जो है रेजिडुअल मोनोमर ड्यू टू द not proper cure of that material. So manufacturers are requested to recommended a proper curing cycle through which monomer content should be less than 1%. Now reduced monomer content depend upon the type of curing regimes. So शॉर्ट क्योर जो है, जो हम अमूमन जो हमने कहा था कि 1 घंटे तक बस ले जाएं, गर्म करें और फिर उसको ठंडा कर दें, ये शॉर्ट इसको क्योर कहेंगे ना। तो इसमें टर्मिनल बॉयल नहीं होता, जैसे हमने पहले कहा था कि 7 आवर तक हमने क्या करना है 70 डिग्री पर, और फिर 3 आवर तक 100 डिग्री तक हमने टर्मिनल बॉयल देना है। तो वो जो अगर हम नहीं करते हैं तो वहां पे हमारे पास चांसेस क्या होंगे, रेजिडुअल मोनोमर के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, ज्यादा होंगे जी। तो इनको रिड्यूस करने के लिए 2 to 3 आवर जो है वो हमें उसको हम क्या करते हैं, रेजिडुअल मोनोमर को रिड्यूस करने के लिए रखते हैं। एक और तरीका ये होता है कि हमने जब डेंचर बना लेते हैं तो हम ओवरनाइट उसको सोक कर देते हैं वाटर में, ताकि अगर उसमें से कोई मोनोमर लीच आउट होता है तो वो उस वाटर में लीच आउट हो जाए। ठीक है जी। तो ये वैसे ही एक जिसको कहें एक थंब ऑफ रूल है, कोई इसकी खास कोई हम ये नहीं कह सकते कि कोई जिसको कहें कि साइंटिफिक हम वो कह सकते हैं, लेकिन सम एक्सटेंट क्योंकि वाटर के अंदर लीच आउट हो जाती हैं सारी चीजें, तो मोनोमर भी होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं। ठीक है जी। तो टाइप 2 मटेरियल्स चूंकि सेल्फ क्योर होते हैं तो उसके अंदर मोनोमर जो है वो ज्यादा हो सकता है। टॉक्सिसिटी जो है तो इसकी बहुत ज्यादा हमने ख्याल रखना है, तो एक्रिलिक रेजिन को रिस्पेक्ट के साथ आपने हैंडल करना है। ठीक है जी। इसकी मैनिपुलेशन के साथ जो भी काम करें, टेक्नीशियन तो लिखा हुआ, लेकिन आप लोग भी हाथों पे ग्लव्स पहन के ही करें। और अब तो
आपका कोरोना ईरा है, आपने किसी भी चीज को हाथ लगाना नहीं है बगैर किसी ग्लव्स के, चाहे वो कहीं से भी आई हो। ठीक है जी। तो सर हाँ जी, तो एटमॉस्फेयर में और पाउडर डस्ट जो है और मोनोमर का जो उसका वो जो वेपर होंगे उसको एटमॉस्फेयर में हमने मिनिमम रखना है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं। इसके साथ ही जी हमारा ये वाला चैप्टर तो खत्म होता है। एक चीज इसके अंदर रह गई है और वो एक जर्नल सी चीज है, मेरे ख्याल से उसको आप लोग खुद पढ़ें। अल्टरनेटिव्स ऑफ द डेंचर बेस्ड मटेरियल है, या अल्टरनेटिव ऑफ मिथाइल मेथाक्रिलेट है। तो उसके अंदर कोई ऐसी खास चीज नहीं है, लेकिन उसको अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर हुआ तो मैं किसी वक्त उसको भी पढ़ा दूंगा, वो 2-3 स्लाइड ही होंगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो आप लोगों की असाइनमेंट भी है कि उसमें से आप अच्छी तरह से उसको समझें, उसको पढ़ें, क्योंकि हर एक चीज अब ये हलवे तो अब मैं आपको नहीं दूंगा ना, कब तक दूंगा। अब नेक्स्ट इसके बाद एक और हलवा जो है वो आपके लिए तैयार करते हैं हम। सर एक क्वेश्चन है। जी जी जी। सर ये मिनिमम एटमॉस्फेयर में रखने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम मिक्सिंग या कुछ वो करते हैं? मिनिमम क्या मतलब? ये लास्ट पॉइंट जो था। जी जी हाँ, वो उसके आपने अंदर वैक्यूम नहीं, वैक्यूम तो पाउडर नहीं वैक्यूम तो कभी भी हम नहीं रखेंगे ना। हम इसको ये करेंगे कि हमने जो है इसका जो सिस्टम है कुछ ऐसा करेंगे। इसका शेयर मैं खत्म करूं मेरा ख्याल से। ये हम आपके लिए कोई दूसरा लें। जी जी क्या हुआ? आप लोगों को कुछ नजर आ रहा है? जी यस सर, क्या क्लिक टू नजर? ऐड टाइटल और क्लिक ऐड सबटाइटल। ब्लैंक पेज है। अच्छा ये आ रहा है नजर। हाँ, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, ओरिजिनली हमने बात करनी थी यहाँ पर। तो ये मैं इसको उड़ाता हूँ जी। तो बात हम करना चाह रहे थे आर्टिफिशियल टीथ की। तो उसके लिए बेटा यही है कि हमने अपने आप को जो है ना कम से कम उसकी डस्ट उड़े पाउडर में, और जो हमारा मोनोमर है हम उसको कवर्ड रखें, बंद रखें, और उसको ऐसी गैर तौर पर सूंघते ना फिरें। ओके ठीक है जी। अच्छा, आर्टिफिशियल टीथ बेटा, आर्टिफिशियल टीथ ये बिल्कुल ही एक ऐसा एक चैप्टर है कि मेरे ख्याल से इसको तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को खुद पढ़ना चाहिए। चैप्टर 15 आपकी बुक में आता है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इसमें से पूरा एक क्वेश्चन बाजों का आ जाता होता है। तो चूंकि हम लोगों ने डेंचर बेस पढ़ ली है, तो डेंचर बेस के अंदर हमारे साथ क्या होता है जी? जी मिथाइल मेथाक्रिलेट सर नहीं, और मिथाइल मेथाक्रिलेट तो होता ही है। मतलब ये है कि डेंचर बेस जो होती है हमारी, इसके उसमें किस नहीं बेटा, डेंचर बेस किस लिए हम बनाते हैं? सर क्योंकि उस दांत नहीं आर्टिफिशियल हम दांत हाँ, लगाने तो हैं। आर्टिफिशियल जब दांत हमने एक डेंचर बेस में हमने लगाने हैं, तो दांत भी तो आर्टिफिशियल ही होंगे ना। ये सर तो वो जो आर्टिफिशियल टीथ हमारे होंगे उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट होंगी हमारे पास। यस ठीक है ना जी। जब उनकी एब्रेजन रिक्वायरमेंट होंगी तो उनकी कोई प्रॉपर्टीज भी होंगी, उनकी कोई कंपोजिशन यस भी होगी। ठीक है जी। तो आज हमारी क्लास बड़ी थोड़ी सी है, ये क्या मसला है? 29 लोग हैं अभी तक जी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो मैं आपको जनरल जनरल सिर्फ बातें लिखवाऊंगा, क्योंकि 2 पेजेस हैं, इसमें कोई इतनी खास वो नहीं है। मैं आपको एक जनरल सा आउटलाइन दे देता हूं। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी, तो जो ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या हो सकती है? उसकी सर एस्थेटिक रिक्वायरमेंट सबसे पहली, कि वो नजर आए जैसे उसके ओरिजिनल टीथ है। उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जी अच्छा, खैर वो तो बात की बात है ना। अभी तो आर्टिफिशियल टीथ जो है हमारे, इसके मेनली 2 टाइप्स हैं। टाइप्स तो बहुत सी ज्यादा है, लेकिन चले हम 2 टाइप्स ही जो हमें बुक में आती हैं वो यही है। एक हमारे पास एक्रेलिक, इसी ये जो डेंचर बेस हमने पढ़ा इसकी होगी, और दूसरा पोर्सलीन। ठीक है जी, पोर्सलीन हम पढ़ेंगे बाद में।
तो ये हमारे पास दो टाइप्स होंगी, एक्रेलिक के और पोर्सलीन के। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले एस्थेटिक आएगी, क्योंकि पेशेंट यही चाहेगा कि जी मेरा दांत अच्छा हो, बिल्कुल ऐसे हो जैसे नजर आए, जैसे ओरिजिनल होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा क्या हो, केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए, बॉन्ड उनका जो है, बॉन्डिंग टू द बेस। कौन सी बेस? डेंचर बेस। बॉन्डिंग टू द डेंचर बेस जो है वो भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि वो खा रहा और धड़ा धड़ा दांत बाहर निकल रहे हो। ठीक है जी। should not react with जी oral fluids. हाँ हाँ, वो तो है ही है ना, ऑब्वियस। तो अटैचमेंट जो होनी चाहिए वो अच्छी हो उसकी। कलर उसके जी कलर कलर वही, वो तो एस्थेटिक हम बात कर चुके ना, उसमें सारा कुछ आ जाता है। अच्छा जी। यस उसके बाद क्या होगा जी, सर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सोचते जाए ना, कंपैटिबल होने चाहिए। ठीक है ना जी, मैकेनिकल कंपैटिबल भी होने चाहिए ना उसके साथ। कंपैटिबल का मतलब कि वो उसके साथ कुछ ना कुछ मैचिंग हो, ये ना हो कि मिस मैच उसके अंदर हो। दोनों के अंदर एक एक जो है, जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात की थी, एक का जो है वो 1 है और दूसरे का 10 है। तो मिस मैच जब होगा तो फिर क्रेजिंग और इस किस्म के प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है ना जी। तो उसके अलावा एब्रेजन स्ट्रांग भी होने चाहिए इनको। ठीक है जी, टू रेजिस्ट फ्रैक्चर, स्ट्रेंथ भी उनकी होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा और क्या होना चाहिए जी, ये जो रेजिस्टेंट। हाँ, एब्रेसिव रेजिस्टेंस, एब्रेजन रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए। ठीक है जी। और क्या क्या हो सकता है? सर वो ओरल कैविटी के साथ रिएक्ट ना करे। हाँ वो तो है ही है ना, वो तो हम बाद में बात और करते हैं। अच्छा, सबसे अहम चीज ये है कि ठीक है एब्रेजन रेजिस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन हम उसकी ग्राइंडिंग भी कर सकें चेयर साइड पर। ठीक है, सर ग्राइंडिंग एट सबसे चेयर साइड जी। वो अवेलेबिलिटी भी मटेरियल की, और सर दूसरी बात ये कि वो चीप भी हो। नहीं खैर, ये इसमें इतना इतना वो कोई खास वो नहीं करता। अवेलेबिलिटी ठीक सर है और थर्मल चीप भी होती स्टेबल है। हाँ, लेकिन इसमें कोई इतना खास मसला नहीं होता। लेकिन अवेलेबिलिटी ओके और चीपेस्ट जो है वो इसमें नहीं आता। अच्छा जी। ओके। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स आ गई। अवेलेबल मटेरियल जो है हमने पहले बात कर चुके हैं, दो मटेरियल हैं जी, एक्रेलिक है और पोर्सलीन है। एक्रेलिक जो है वो क्या है, यही डेंचर बेस मटेरियल है। सिवाय उसके अंदर एक्रेलिक में क्या होगा, सिंपल जो है वो उसका कलर जो होगा, एक्रेलिक जो है इसका कलर डिफरेंट होगा डेंचर बेस मटेरियल से। ठीक है जी, क्योंकि टूथ जो है उनका अपना कलर है येलोइश टाइप का, डेंचर बेस का हम अमूमन पिंक कलर बनाते हैं। ठीक है जी। और यस सर। ये जो है बनाया इनको कैसे जाता है, हाउ दे फॉर्म्ड, तो इनकी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैसे होगी, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जी ये रीयूजेबल मोल्ड के अंदर बनते हैं। ठीक है जी, मेटालिक मोल्ड्स इनके होंगे। और दो टाइप्स इसके अंदर हो सकती हैं, या तो हम इसके अंदर डो डालेंगे या फिर हम 4 टाइप मटेरियल इसमें यूज करेंगे। उसको हम हीट करके इसके अंदर इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा एक्रेलिक का आ गया। पोर्सलीन के अंदर क्या होगा, अच्छा एक और चीज भी है कि रेजन जो होंगे इसके अंदर वो हाईली क्रॉस लिंक्ड होंगे। ठीक है जी, क्योंकि अगर हाईली क्रॉस लिंक्ड अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, इनके अंदर वो वीक होगा। वीक होगा जी, जबरदस्त जी। उसके बाद क्या होगा जी, पोर्सलीन आ जाता है हमारे पास। पोर्सलीन में क्या होता है जी कि इसका जो मोल्ड होता है हमारे पास, ये तकरीबन 30% हम इसका ओरिजिनल जो हमने दांत बनाना है उसे 30% क्या करेंगे, ज्यादा बनाएंगे। उसको क्या कहेंगे 30%? वो सर
कॉन्ट्रैक्शन उसमें होगी। हाँ हाँ, तो ये 30% लार्जर मोल्ड होगा इसका। ठीक है जी। तो पोर्सलीन के टीथ के जो होते हैं ये अमूमन रीयूजेबल नहीं होते हैं, इनके जो होते हैं मोल्ड जो होंगे ये डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। अच्छा, अब एक्रेलिक तो जो है उनका अपना एक सिस्टम है, वो उनके साथ मिक्सअप हो सकते हैं, उनकी बॉन्डिंग केमिकल हो जाती है। ये वाली जो है इनकी बॉन्डिंग जो है वो केमिकल होगी। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो होगी पोर्सलीन में ये मैकेनिकल होगी, तो मैकेनिकल थ्रू पिन्स एंड होल्स। ठीक है जी। सर हाँ हाँ, सर ये 30% अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी सर, ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो पोर्सलीन में ऐसे ही होता है बेटा। तो पोर्सलीन में उसके लिए चूंकि फिर हम पानी कैसे होता है ना, अभी हम पढ़ेंगे ना, तो रिड्यूस। पोर्सलीन में चूंकि पानी होता है ना, तो पानी जिस वक्त उसमें से निकलता जाता है, और दूसरे नंबर पे उसमें ग्लास होता है, तो ग्लास जिस वक्त आपस में श्रिंक होता है तो ये आपस में श्रिंक हो जाता है। ओके सर। जी जी, इसमें ये दो चीजें होती है ना, बाकी चीजें भी आपस में हीट से ये एक दूसरे के साथ वो हो जाते हैं ना, क्या उसको कहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आके तो हीट के साथ फ्यूजन हो जाती है इनकी। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टीज में अगर हम आते हैं तो वही चीज रियलिस्टिक अपीयरेंस आ गई। ठीक है जी, एक और डाल देते हैं इसमें। तो प्रॉपर्टीज में अगर हम आते हैं तो क्या होगा जी? वो सर पहले तो आपने बता दी, दूसरी बात ये कि वो उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाँ, अपीयरेंस होगी। ठीक है जी, स्ट्रेंथ होगी, और क्या क्या थर्मली हो सकता है स्टेबल, जी? थर्मली स्टेबल, है, हाँ बिल्कुल। थर्मली स्टेबल। थर्मली तो खैर सारे स्टेबल होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोएफिशिएंट सर ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी तो है एक्सपेंशन नहीं, जी? प्रॉपर्टी तो है इसकी, क्या नहीं है? ये थर्मल स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी तो एक प्रॉपर्टी है ना उसकी। नहीं नहीं, इसके अंदर तो थर्मल स्टेबिलिटी का कोई मसला नहीं है बेटा, ये तो होते ही थर्मल स्टेबल है। थर्मल स्टेबल ना हो तो हम डेंचर कैसे बना सकते हैं उसके साथ? ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी सर किसी और चीज में हो सकती है, इसमें नहीं होती। ओके सर। अच्छा जी, उसके अलावा एक जो मतलब ज्यादातर जो होती है ये क्लिकिंग साउंड जो होती है ये हमारे पास आती है, तो ये एक डिस्टर्बिंग किस्म की प्रॉपर्टी होती है, और ये अमूमन पोर्सलीन में होती है। ठीक है जी, क्योंकि वो पत्थर के दांत होते हैं जिसको हम कहते हैं। अच्छा जी, और अटैचमेंट जो होती है वो केमिकल यूनियन होती है, उसमें हम पहले बात कर चुके हैं, और जो दूसरे हैं उसके अंदर क्या होती है हमारी मैकेनिकल मैकेनिकल। मैकेनिकल। हाँ बिल्कुल, और ये मैकेनिकल या हो या केमिकल हो, ये डिपेंड अमूमन ये करती है कि हम जब उस डेंचर की डीवैक्सिंग करते हैं तो बॉइलिंग आउट में हमारे पास क्या होना चाहिए, सारी की सारी उसकी वैक्स वहां से रिमूव हो जानी चाहिए। अगर वैक्स उधर होगी तो फिर ये बॉन्डिंग नहीं हो सकेगी केमिकल। ठीक है जी। तो अगर जब हम इसके अलावा एक और चीज ये करते हैं कि हम इसको साफ एरिया जो होता है ना एक्रेलिक का खास तौर पे उसको यूज करते हैं, लेकिन एक्रेलिक टीथ जब बनते हैं तो ये हाईली क्रॉस लिंक्ड हमने कहा है, इसका मटेरियल होता है कोर ऊपर वाला, लेकिन कोर और बेस जो होती है ये थोड़ी सी सॉफ्ट उसमें होती है। यूजुअली अनक्रॉस लिंक जो होते हैं ना उसके अंदर हम मटेरियल जो है यूज करते हैं, अनक्रॉस लिंक्ड होते हैं एट बेस एंड कोर। ये कौन से एक्रेलिक टीथ जो है हमारे, तो हम इनको इसकी चूंकि क्रॉस लिंकिंग इतनी नहीं होती तो यहाँ पे हमारी ग्राइंडिंग जो है इससे आसान हो जाती है। तो ग्राइंडिंग की वजह से हम क्या करेंगे, जब ग्राइंडिंग आसान होगी तो इसका मतलब ये है कि हम उसको शेप दे सकते हैं, वो जितने भी दांत हमने किसी के मुंह में लगाने हैं, छोटे बड़े करना है, वो हम आसानी से कर सकते हैं एज कंपेयर टू द अदर वन। जो दिस इज द पोर्सलीन टीथ, पोर्सलीन टीथ में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ये चीज। ठीक है जी। सर जी, जब अनक्रॉस लिंक एट बेस और कोर होंगे सर तो फिर ये तो इजीली ब्रेक हो सकते हैं। तो ब्रेक तो होते हैं ना, ब्रेक होने का कोई मसला नहीं, लेकिन ये ब्रेक इतनी जल्दी नहीं होते जितने ब्रेक हमारे वो होते हैं पोर्सलीन टीथ। पोर्सलीन हाँ, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें कि ये जितना भी हमारे पास अनक्रॉस लिंक्ड होगा ना, तो इसके अंदर एक और चीज भी तो होगी कि
ठीक है, क्रॉस लिंकिंग तो हमारे उसके अंदर जो है एनर्जी एब्जॉर्प्शन को ज्यादा करती है, लेकिन वो दूसरा भी तो टू सम एक्सटेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो इस वजह से उसका फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू ये जो है हमारा पोर्सलिन। पोर्सलिन पे जो ही आएगा तो वो उसकी लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की वजह से वो टूट जाएगा, और अमूमन ऐसा होता भी है। ठीक है जी, तो ये इसलिए हम इसको, और ये बेस के ऊपर होते हैं, और बेस और कोर जो है ये अमूमन ये तो अंदर होती है, ऊपर से तो वो क्रॉस हाईली क्रॉस लिंक्ड होते हैं ना, तो बेस जो है ये तो हमारी डेंचर बेस के अंदर चली जाएगी, तो वहां पे तो सर हम जाके ये उसकी कह सकते हैं बॉन्डिंग को कि फैसिलिटेट करेगी। जी, हम ये कह सकते हैं इसकी बेस और कोर पे सर डैम्पिंग ऑफ फोर्स होती है। डैम्पिंग ऑफ फोर्स होती है, वो कैसे? वो मतलब फोर्स को एब्जॉर्ब सा करता है। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। फोर्स तो मतलब देखो, जब बट जॉइंट बन जाएगा इसका, जब इन आपस में केमिकल यूनियन हो जाएगी, तो फोर्स तो एब्जॉर्ब इधर नहीं होगी, फोर्स तो ट्रांसफर्स जाएगी ना, सारी बेस तक जाएगी, और अगर वहां पे फोर्स इसको एब्जॉर्ब कहीं पे करनी पड़ गई तो वहां पे फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। फोर्स जहां पे भी आएगी और अनड्यू फोर्स आएगी वो उसको तोड़ सकते हैं। ओके सर, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी। और इसके अंदर ज्यादातर हमारा जो है वो कहते हैं जी रिपेयर इसकी जरूरत होती है, और डीबॉन्डिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। डीबॉन्डिंग का इशू सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास उसमें है पोर्सलिन में है, एक्रिलिक में भी ऐसा ही है। ठीक है जी, तो इनको डायटोरिक होल्स कहते हैं, जो होल्स हम बनाते हैं ना इसके अंदर पोर्सलिन में, उनको डायटोरिक होल्स कहते हैं। ठीक है जी, या पिन्स हम लगाते हैं, तो ये जो है हमारे मीन्स ऑफ क्या होंगे, होल्डिंग द टीथ। मैकेनिकल एडहेजन होंगे। मैकेनिकल एडहेजन होती है ना इसमें पोर्सलिन में। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपकी दी हुई हैं बुक में, अगर आप देखें डेंसिटी जो होती है अलबत्ता इनकी पोर्सलिन टीथ की ज्यादा होती है, तकरीबन उससे दुगनी होती है एक्रिलिक की निस्बत, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी जो है एक्रिलिक टीथ का बहुत ज्यादा है। तो एक्रिलिक और एक्रिलिक तो आपस में मिल जाते हैं, लेकिन उधर दूसरी तरफ जो है पोर्सलिन का बिल्कुल कम है, वो 7 है तकरीबन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है अब उधर ज्यादा है पोर्सलिन का, और इसका कम है। ठीक है जी, तो फोर्स तो ठीक है कि ये कम मतलब उसमें ले सकते हैं, लेकिन उधर दूसरी तरफ ये है कि वो फोर्स जो है वो आपके उसको वो लेता तो ज्यादा है, लेकिन वो आगे आपके सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर जाके उसको ट्रांसफर कर देता है पोर्सलिन टीथ, जबकि एक्रिलिक टीथ ऐसा नहीं करता। ठीक है जी, उसके ऊपर इतनी ज्यादा फोर्स वो लेता ही नहीं है। अच्छा जी, अब जो एक्सट्रीम हार्डनेस होगी हमारी वो डिसएडवांटेज आ जाता है। ठीक है जी, किस चीज का हार्डनेस किस में है ज्यादा?